Okay, today we are going to start with the atom, structure of atom, and bonding, including the bonding in its structures too. This chapter includes so many topics, and we have to cover it in this whole under the same topic, that is the atom. So first of all, what is an atom? Atom is the smallest particle on earth that can form any element. अगर कोई एलिमेंट बनाना है तो उस एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा वो एटम होगा. वैसे एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो है सब एटॉमिक पार्टिकल. सो पार्ट्स ऑफ एटम. Parts of atom. Basically, atom is divided into two parts. Number one is the nucleus, and other one is the orbit or shell. Okay. So when if I'm going to draw the structure of atom, simple जो हम इसका structure draw करेंगे, तो atom का structure कुछ ऐसा होगा. Okay. तो दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. This one is the center part, that is called the nucleus, and this one is the shell or orbit or energy level. Okay, that's why it is called the atom. ठीक है, इसके दो parts हैं. As far as the subatomic particles are concerned, these subatomic particles are residing in between these two particles. Okay, now let's have a look on the subatomic particles, due to which atom is made. Subatomic particles are electrons, protons, and neutrons. So if I am drawing the simple atom of hydrogen, suppose this one is the simple atom of hydrogen. Okay, इसी के ऊपर समझा देते हैं. So the center, there is a central nucleus, and it has got one shell. It has got in the center proton, inside the nucleus, and neutron is present, whereas outside in the orbit there is an electron. So if I'm going to regulate, it's like this. Electron, okay, proton, and neutron. Okay, so that's how the structure of an atom along with the subatomic particles are look alike. Now, shells of atom and number of electrons in each shell. अब हम ये देखेंगे कि कितने शेल एक एटम के अंदर मौजूद हो सकते हैं मैक्सिमम, और हर शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अक्यूमुलेट हो सकते हैं. So for this I am going to write the shells, their names and their number. First shell is called K shell. Second shell is called L shell. Third shell is called M shell. Fourth shell is called N shell. Okay, so these are the shells, number of shells and the names. Then how many electrons are there in it? For this we have to find out the number of electrons with the help of the formula.
And the formula for finding the number of electron in the specific shell is 2n square, where 2 is the number, n is the number of shell. That means in n we put the k shell number. If we put the k shell number, we put 1 and the square of that and multiply it with the 2, then it will give the number of electrons which is present in the k shell. So for k shell we put the formula 2n square, and if we put the value of n, where n is the 1, value is 1 square, that is 2 electrons, right? K shell has got 2 electrons in it, maximum number. For L shell, 2n square, the number of L is 2. So we put the 2 in the bracket. 2 to the 4 and 4 to the 8. 8 electrons. Okay. Now the third shell. That is, for this we have put the same formula. 2, number of shell of M is 3 square, 18 electrons. Right? And for the last one, 2n square, 4, for the 16, 16 to the 32. 32 electrons. So according to the formula and general structure, K shell contains maximum 2 electrons, L shell contains maximum 8 electrons, M shell contains maximum 18 electrons, whereas N shell contains maximum 32 electrons. Understand? Understand or not? Okay. Now the mass of each subatomic particle. Okay, so mass of proton 1 unit, mass of neutron 1 unit, and mass of electron 1/1840 or almost negligible. ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि ना होने के बराबर ही होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मान 0 ही कंसीडर करते हैं. Apart from this, we can also include the mass of subatomic particles and charges on it. So when we talk about the proton has got the positive charge on it, whereas neutron has no charge, and electron has negative charge on it. Okay. Now another thing which is very much necessary, इसको समझना बहुत जरूरी है, that is valence shell or valence electron. Valence shell is called the outermost shell of electron. Shell of electron of atom, sorry, outermost shell of atom. एटम का outermost shell जो होता है उसे हम valence shell कहते हैं. Whereas valence electron or electrons are the electrons that are present
in that outermost valence shell, right? Now the atomic number. Atomic number is the number of electrons or number of protons in any atom. Okay. Atomic number is the number of electron or the number of proton in any atom. For example, if we talk about sodium, atom, as far as sodium atom is concerned, it has the atomic number 11. Sodium atomic number is 11. So how it could be arranged? It could be arranged in such a way that in the nucleus protons are 11. We are not talking about neutron right now. Right now neutron के बारे में बात कर रहे हैं. प्रोटॉन 11 होंगे तो 11 बाहर इलेक्ट्रॉन भी होंगे. तो पहले शेल के अंदर कितने आ सकते हैं? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जो हमने पढ़ा था. और एल शेल के अंदर कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. और एम शेल के अंदर एक लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ होगा वो आ जाएगा. So if we are going to arrange it in order, so how it looks like? First shell got 2 electrons, second shell got 8 electrons, and the last one got the 1 electron. So total 11 electrons are arranged. So the when we talk about its atomic number, we just count the number of electrons or the number of protons. Okay, so that's the atomic number. Atomic number is necessary for finding the bondings between atoms and chemical reactions and chemical properties of an atom. Chemical properties of an atom can be found out by their atomic number. Now the atomic mass. The sum of proton and neutrons in any atom is termed as its atomic mass. So mass of nucleus is actually the mass of an atom. अच्छा, actually the mass of an atom. सही है. अच्छा, अब इसके अंदर मास ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस
number of neutrons. Atomic masses refers or usually taken as for information for finding the physical property of an element. Atomic masses are useful for finding the physical properties of any element. Understand? यहाँ तक बात समझ में आई? Understand or not? जी. Okay. अच्छा. अब नेक्स्ट है आइसोटोप्स. Isotopes are the atoms that have similar atomic number but different atomic masses. Understand? Isotopes क्या है? Isotopes are the atoms that have similar atomic number but different atomic masses. For example, hydrogen has 3 isotopes. These 3 isotopes are protium, deuterium, deuterium and tritium. Whereas protium has zero neutron but 1 proton. So atomic mass इसका जो होता है वो 1 है. Deuterium has 1 proton, 1 neutron. So it has got atomic mass 2, whereas tritium it has got 1 proton and 2 neutron. अब देखो इसमें नंबर किसका चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज हो रहे हैं. So it has got atomic mass 3. So that's how the atomic mass affects because of the number of neutrons. Number of neutron के चेंज होने की वजह से इसका जो इफेक्ट होता है वो चेंज हो रहा होता है, एटॉमिक मास चेंज हो रहा होता है. That means, in other words, we are going to start with the electronic configuration. Okay. Electronic configuration. Electronic configuration of different elements. Before starting this, we have to understand the octet rule and the duplet rule. Octet rule
and the duplet rule. These rules are applied in order to make the atoms stabilize. If the valence shell contains minimum 8 electrons in their outermost shell, then the atom become stabilized. That is, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा. That is due to completion of the valence shell atom become inert. Right? यहाँ तक बात समझ में आ गई? Whereas the duplet rule is only for few atoms which has got only the K shell. Because for getting the 8 electron in the outermost shell, the shell must have the capacity of 8 electron to accumulate. इतना shell होना चाहिए बड़ा कि वो 8 electron को accumulate कर सके. जहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमुलेट करने के बाद जो है वो शेल स्टेबलाइज हो जाता है या एटम स्टेबलाइज हो जाता है, वो ऐसा एटम होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल जो होता है एक ही शेल होता है, वही इसका आउटर मोस्ट शेल होता है, यानी के शेल. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, इसकी एग्जांपल जो है हम हाइड्रोजन एटम से देखेंगे. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 1 है. ठीक है. सो इसका प्रोटॉन जो है वो 1 और न्यूट्रॉन इसका 0. और क्योंकि प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी इसमें कितने होंगे, 1 ही होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा तो डेफिनेटली ये अनस्टेबल होगा. तो ये कोशिश क्या करेगा कि ये कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले. अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से इसने गेन कर लिया तो नाउ इट्स द ड्यूपलेट रूल, दैट इज इट बिकम इनर्ट और स्टेबल. इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये शेल कौन सा वाला होता है, सिर्फ के शेल होता है, जिसके अंदर ही ये ड्यूपलेट रूल चल रहा होता है. फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑक्टेट रूल, इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं. एक ले लेते हैं हम सोडियम की ऑक्टेट रूल के लिए. इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम एटम की. और एक हम लेंगे क्लोरीन एटम की. तो सोडियम एटम जो है अगर मैं उसको बनाती हूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 11. ठीक है. सो सोडियम के प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे. न्यूट्रॉन को मैं डिस्कस अभी नहीं कर रही. पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगर 11 इलेक्ट्रॉन मुझे अरेंज करने तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. शाबाश. तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने अरेंज कर लिए. फिर उसके बाद ये के शेल था. ठीक है. ये कौन सा वाला शेल है, ये के शेल था. फिर उसके बाद नेक्स्ट शेल हमारे पास कौन सा होगा, एल शेल होगा. एल शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो अभी 11 में से जैसे कहा जाए कि 2 तो चले गए, अब बाकी कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बाकी है. तो 8 तो इसके अंदर आ जाएंगे एल शेल के अंदर, जो कि इसकी टोटल रिक्वायरमेंट है. तो इसको अगर हम इनर्ट कह भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर उसके बाद बचा एक इलेक्ट्रॉन. 11 में से 9 इलेक्ट्रॉन वो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो लग गए. ठीक है.
10 इलेक्ट्रॉन रख गए। अब एक जो बचा ये आगे वाले शेल के अंदर आ जाएगा। अब ये जो है ये आया है एम शेल के अंदर। ये कौन से वाले शेल के अंदर आया है? थर्ड शेल यानी एम शेल के अंदर। हाँ, अब देखो होगा क्या कि चले अब एम शेल को अपने आप को स्टेबल करने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक तो है इसके पास, मजीद कितने की जरूरत है? 3। हाँ, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है 8 की जरूरत होगी ना इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए। एक तो है, इसको 7 कहीं और से लेने पड़ेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल है 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना और फिर ऑक्टेट का रूल कंप्लीट करना। लिहाजा ये क्या करेगा, इसको मालूम है कि इसके जो है लोअर शेल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, तो ये इसको जो है खत्म कर देगा। दैट मीन्स के जो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा वो किसी को डोनेट कर देगा या किसी को दे देगा, बाहर फ्री कर देगा। और यूं जो है इसके अब जो है वो प्रोटॉन कितने हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए 10। ठीक है, तो 10 में से 11 गए तो कितने बचे? 1 बचा ना। और चूंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं साइन कौन सा लगाऊंगी? माइनस का लगाऊंगी, है ना। यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, लेकिन जो है ना 1 के साथ साइन प्लस का लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बड़े का साइन लगाते हैं। लिहाजा अब सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आ गया है, क्योंकि उसका ऑक्टेट का रूल कंप्लीट करने के लिए अपने आप को एटम से किस में कन्वर्ट कर लिया? आयन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या बन गया? सोडियम आयन। क्या बन गया? सोडियम आयन। लेकिन इसका ऑक्टेट का रूल कंप्लीट किया है। अच्छा, इस तरीके से ये ऑक्टेट का रूल हमने सोडियम के साथ फॉलो अप करके दिखाया। अब हम जो है क्लोरीन पे देखते हैं ऑक्टेट का रूल कैसे फॉलो होता है। Now we discuss the octet rule on chlorine atom. तो क्लोरीन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, अब इसको हम एटम में कैसे अरेंज करेंगे? पहले तो मैंने शेल बना दी, ठीक है। अब देखो इसके प्रोटॉन उतने ही होंगे जितने इसका एटॉमिक नंबर है, यानी 17। सही है। अच्छा, अब पहले शेल के अंदर 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ लग गए। अब 17 में से 2 गए, कितने बचे? बताओ। 15। 15। अच्छा, 15 बचे। अब 15 में से 8 जो है वो तो इसमें लग जाएंगे एल शेल में, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है। ठीक है, अब कितने बचे? 5 हैं। 8 और 2 10। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है ना जी, है ना। तो 10 तो ये लग गए, बचे कितने? 7 बचे ना। 7 तो वो 7 जो है वो इसके अंदर लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अब देखो ये जो है ये है के शेल, ये है एल शेल, दोनों कंप्लीट है। ये ड्यूप्लेट का रूल फॉलो कर रहा है, ये ऑक्टेट का रूल फॉलो कर रहा है। एम शेल, एम शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन ये ऑक्टेट का रूल कंप्लीट करे अगर कर ले तो इसको 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, मजीद 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। 8 अगर ये कहीं से कंप्लीट कर ले तो एम शेल के अंदर ऑलरेडी जो है 7 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गेन कर सकता है और वो एक इलेक्ट्रॉन हाँ वो सोडियम का जो इधर उधर फिरता हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 17 है ना। इलेक्ट्रॉन इसके पास अब कितने हो गए? 18। इसको हम माइनस कर रहे हैं, सही है। तो 17 में से 18 या 18 में से 17 गए तो कितने बचे? 1। चार्ज साइन बड़े का लगेगा तो -1।
सही है। माइनस तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा आया, -1 का। अब बात माइनस समझ 1। में आई। तो इस तरह क्लोरीन जी ने जी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्टेट का रूल फॉलो करते हुए एटम से क्लोरीन आयन में कन्वर्ट कर लिया। समझ आ गई बात। जी जी। ओके। ओके, सपोज सोडियम और क्लोरीन का भी मैंने तुम लोगों को बता दिया है। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को भी गो थ्रू कर देते हैं। Now we are going to start with the atomic number of certain elements और उसके हिसाब से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो प्रोटॉन इसके होंगे 12। वी आर नॉट कंसर्न राइट नाउ अबाउट द विद द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन लिखेंगे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ। 2 2। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अभी मुझे पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, फिर कलरफुल बनाएंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 8। 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी शेल में 8। आखिरी शेल में 8 क्यों होंगे? 12 आखिरी है ना शेल में एटॉमिक 2 नंबर। दो 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 दो। ओके, 2 आ गए। अच्छा, अब ये है मैग्नीशियम का एटम। अब अगर इधर देखो, स्क्रीन की तरफ देखो, अब अगर फर्ज करो इसको अपने आप को स्टेबलाइज करना होगा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इन 2 को लूज कर देगा? लूज लूज कर देगा। सही है ना कि 6 इलेक्ट्रॉन कहां से लेकर आए, इसलिए ये 2 को लूज कर देगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, इसके अलावा हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है, एक सेकेंड, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, दैट इज प्रोटॉन 20। अब इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा, पहले शेल में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में 8 आ गए। तीसरे में भी 8 आ गए। दूसरे में चौथे भी में 2। 8 आ गए। ठीक है, चौथे में क्योंकि 2। जैसे ही ऑक्टेट का रूल कंप्लीट होगा ना, तो अगर ये चाहे तो मजीद 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने इस शेल के अंदर अकोमुलेट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी है। कौन सा शेल है? KLM। एम के अंदर कैपेसिटी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है, लिहाजा वो बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उनको वो यही डायरेक्ट करेगा कि भाई आप जो है ना, बराए मेहरबानी ऊपर वाले शेल में चले जाइए, मैं तो स्टेबल हो चुका हूँ, मैं अपनी स्टेबिलिटी जो है वो खराब किसी हाल से नहीं करूंगा। सही है। तो इसलिए जो है, जो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसमें चले जाएंगे? आगे वाले शेल। अब कैल्शियम को अगर स्टेबल करना होगा अपने आप को, ये तो कैल्शियम एटम है, अगर इसको अपने आप को स्टेबल करना होगा तो क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज कर देगा। यही वजह है कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, और कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, क्योंकि इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अगर ये आयन में कन्वर्ट होता है तो। अब यहाँ पे मैं जो है जिसे कहा जाए कि जो बड़े एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को समझा चुकी हूँ।